السلام علیکم۔ میرا نام زاہدہ عابد ہے۔ میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لیٹن روڈ میں لیکچرر ہوں، اور اس کے علاوہ ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے اے آئی کی ٹریننگ لے رہی ہوں، اور اس ٹریننگ میں ڈفرینٹ ٹاسک کیے جا رہے ہیں، جس میں ایک ٹاسک چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن کرنا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ہاؤ ٹو بلڈ سیلف ڈسپلن اینڈ اسٹے فوکسڈ، یعنی سیلف ڈسپلن کیسے پیدا کیا جائے اور اپنے آپ کو فوکس کیسے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آج ہم چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ سوالات کریں گے، اور یہ چیٹ جی پی ٹی ہمارا آنسر کرے گا۔ جی، تو السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی۔ آج وعلیکم السلام. آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ تو Okay. جی، آج کا ہمارا موضوع ہے خود نظم و ضبط کیسے پیدا کریں اور اپنی توجہ کو کیسے برقرار رکھیں۔ تو اس ٹھیک ہے. موضوع پر بڑا رہنمائی اچھا. کے لیے ہمارے ساتھ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس گفتگو میں شامل کیا. خود نظم و ضبط اور توجہ واقعی ایسے موضوعات ہیں جن پر بات کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کس پہلو سے شروع کرنا چاہیں گی؟ روزمرہ کے معمولات، ٹال مٹول کی عادت، یا پھر ڈیجیٹل خلفشار؟ جی، یہ موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے، کوئی طالب علم ہے، استاد ہے، ملازم ہے یا کاروباری شخص ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سیلف ڈسپلن ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سیلف ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف اور قدروں کے مطابق اس وقت بھی عمل کریں جب دل نہیں چاہ رہا. آسان لفظوں میں، جو کرنا چاہیے وہ تب بھی کریں جب دل نہ چاہے. یہ محض سختی نہیں، بلکہ یہ اپنے بڑے مقصد کو چھوٹے وقتی مزوں پر ترجیح دینا ہے. جی، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سیلف ڈسپلن اور موٹیویشن ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، بالکل ایک جیسی نہیں. موٹیویشن ایک عارضی جذبہ ہے جو کبھی بہت اوپر کبھی بہت نیچے جا سکتا ہے. بٹ جب ڈسپلن ہو تو آپ کو ہر بار موٹیویشن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. آپ بس اپنا طے شدہ کام کرتے رہتے ہیں. جو سمجھیں کہ موٹیویشن چنگاری ہے اور ڈسپلن وہ ایندھن ہے جو آپ کو چلتا رکھتا ہے، چاہے موٹیویشن کم بھی ہو جائے. اوکے، تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنے مقاصد تو بنا لیتے ہیں، ان کو اپنے پرپس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس پہ قائم کیسے رہنا ہے، یہ نہیں جانتے۔ تو اس کا سیلف ڈسپلن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے. مقصد آپ کو سمت دیتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اور ایک سسٹم چاہیے. سیلف ڈسپلن اسی سسٹم کو نبھاتا ہے جب تک کہ مقصد حقیقت نہ بن جائے. اگر صرف موٹیویشن پر انحصار کیا جائے تو جب جوش ٹھنڈا پڑتا ہے کام بھی رک جاتا ہے. اوکے، تو سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک بہت چھوٹا، واضح اور روزانہ کا قابل عمل ہدف منتخب کریں. اتنا چھوٹا کہ اسے نہیں کر سکتا کہنا مشکل ہو جائے. مثال کے طور پر، روز صرف 5 منٹ کسی اہم کام کے لیے مقرر کر لیں. جب یہ معمول بن جائے تو آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں، ہوں، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا یاد دہانی کا اشارہ مقرر کریں، جیسے الارم یا کیلنڈر نوٹیفیکیشن، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کام کس وقت کرنا ہے. اوکے، تو دوسری چیز ہے فوکس کرنا۔ آج کے دور مہم. میں کسی بھی ایک کام پہ فوکس کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے دیکھتی ہوں. جی، آج کل فوکس برقرار رکھنا واقعی بڑا چیلنج بن گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے ڈیجیٹل خلفشار، موبائل، سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز ہر چند منٹ بعد توجہ ہٹا دیتے ہیں. پھر واضح ترجیحات کرنا ہونا اور مسلسل تھکن. اوپر سے ملٹی ٹاسکنگ کا وہ فریب
जिसमें लगता है हम कई काम कर रहे हैं, मगर असल में हम एक से दूसरे काम पर छलांगे लगा रहे होते हैं। इसका तौर एक वक्त में जी। नेक्स्ट ये बताएं कि अगर किसी दिन इंसान अपने प्लान पर अमल ना कर सके या रोज़मर्रा कामों पर वो मुनासिब तरीके से ना कर सके तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा होना बिल्कुल आम बात है। ऐसे दिनों में अपने आप को मलामत ना करें। बस इतना कहें कि आज नहीं हो सका, ठीक है? कल दोबारा कोशिश करेंगे। फिर अगले दिन अपने सबसे छोटे मुमकिन कदम से वापस मामूल पर आ जाएं। तसलसल कामिल होने से बेहतर है। मकसद ये नहीं कि कभी खता ना हो, बल्कि ये है कि हर खता के बाद वापस रास्ते पर आ जाएं। यही असल मजबूती है। तो क्या जिस्मानी सेहत भी सेल्फ डिसिप्लिन या फोकस होने पर कोई असर डालती है? बिल्कुल डालती है। नींद की कमी, मुसलसल दबाव या वर्जिश ना करना, ये सब तवज्जो और नज़्म ज़ब्त को मुतासिर करते हैं। अच्छी नींद, सादा ग़िज़ा और मुख्तसर सैर भी फोकस बढ़ा सकती है। खुद नज़्म ज़ब्त सिर्फ ज़हनी नहीं, ये जिस्मानी हालत से भी जुड़ा हुआ है। अगर जिस्म थका हुआ हो तो दिमाग बहाने ज़्यादा बनाता है। लिहाजा अच्छी आदत जिस्म के लिए भी और दिमाग के लिए भी, दोनों को सपोर्ट करती हैं। जी। तो तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर पे इस हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? तालिब इल्मों के लिए मेरा सीधा सा मशवरा है, बड़े मंसूबे को छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़े, नोट्स मुनज़्ज़म रखिए, अहम तारीखें पहले से लिख लें और इम्तहान से पहले वाले दिन पैनिक करने के बजाय सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें। और रोज थोड़ी सी पेशरफ्त को तस्लीम करना भी ना भूलें। ये छोटी सी तारीफ तवील सफर में हौसला बढ़ाती है। तो अब ये बताएं कि एआई या जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ोकस बढ़ाने में क्या किरदार अदा हो सकता है? एआई मुआविन बन सकती है, मुतबादिल नहीं। मसलन याद दहानी, मुताले का शेड्यूल बनाने या मुश्किल मौज़ूआत को सादा करने में मदद मिल सकती है। लेकिन तवज्जो की आदत फिर भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। एआई को अपने हक में इस्तेमाल करें, लेकिन डिसिप्लिन, आराम और स्क्रीन ब्रेक को नज़रअंदाज ना करें। टेक्नोलॉजी को आदत के मुतबादिल के तौर पर नहीं, आदत के मददगार के तौर पर इस्तेमाल करना बेहतर है। ओके, चलें। और सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन पर जो बच्चे फ़ोकस करते हैं, तो हाँ, उनको किस तरह डाइवर्ट किया जाए? एक मिनट में देखती हूँ। ये आज के दौर का अहम सवाल है। बच्चों को बिल्कुल अलग करने के बजाय मतवाज़िन इस्तेमाल सिखाएं। इनसे बात करें कि वक्त की तकसीम क्यों ज़रूरी है। फ़ोन के लिए औकात मुकर्रर करें, मतबादिल दिलचस्प सरगर्मियाँ दें, जैसे किताबें, खेल, ड्राइंग या कोई नया हुनर। खुद भी अच्छी मिसाल बनी, क्योंकि बच्चे वही दोहराते हैं जो बड़ों को करते देखते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात काम के दौरान कुछ डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, उनसे बचने के लिए कोई ख़ास टेक्नीक बताएँ जो स्टूडेंट्स के लिए के काम का आ सके? एक आजमूदा तरीका यह है कि पढ़ाई को छोटे सेशंस में बांट लें। मसलन 25 मिनट का फोकस और 5 मिनट का वक्फा। हुँ। पोमोडोरो टेक्निक। फोन को दूसरी जगह रख दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और अगर मुमकिन हो तो पढ़ाई के लिए एक मखसूस जगह बना लें जहाँ सिर्फ पढ़ाई हो। इसके अलावा दिन के शुरू में 3 तरजीह काम लिख लें ताकि भटकाव कम हो। ओके। तो ये बताएँ कि जिस्मानी सेहत या वर्जिश का भी इसके साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, ताल्लुक है। बाकायदा वर्जिश से नींद बेहतर होती है, दबाव कम होता है, मूड मुतवाजिन रहता है, जिससे फोकस बढ़ता है। रोज की थोड़ी सी जिस्मानी हरकत भी बड़ी मदद करती है, चाहे वो तेज कदमी हो, स्ट्रेचिंग हो या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज। इससे ना सिर्फ तवानाई बढ़ती है, बल्कि दिमागी धुंध भी कम होती है। तो जिस्म और जहन को साथ साथ रखना ही कामयाबी की कुंजी है। और इसके अलावा मुस्तकिल मिज़ाजी का क्या रोल होगा इसमें, उस पर भी रोशनी डालिए। मुस्तकिल मजाजी इस सारे अमल की जान है। मोटिवेशन आए या ना आए, आदती छोटे छोटे कदम मुसलसल लेते रहती हैं तो नतीजा बन जाता है। मुस्तकिल मजाजी का मतलब कमाल नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना है। कभी चूक भी हो जाए तो हौसला नहीं हारना, बस वापस रास्ते पर आ जाना।
اوکے. बस अम, यही छोटे-छोटे तसलसल हैं जो बड़े-बड़े नताइज बन जाते हैं. जी. तो इसके अलावा किसी इंसान की ज़िंदगी में फिर भी कोई मसाइल पेश आएँ और वो उन पर काबू ना पा सके, तो फिर उसके लिए क्या मशवरा देंगी? देखती हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है. सबसे पहले तो मायूस होने के बजाय मसले को तोड़ कर देखिए. क्या हल मुमकिन है? छोटे-छोटे कदम सोचिए. अगर ज़रूरत हो तो वालिदैन, उस्ताज़ा या किसी काबिल एतमाद दोस्त से मशवरा करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. मुनासिब नींद, ग़िज़ा, वर्जिश, मुराकबा या दुआ जैसी आदत अपनाएं. और अगर बोझ मुसलसल महसूस हो और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही हो, तो किसी माहिर नफ्सियात से बात करने से ना हिचकिचाएं. असल कामयाबी ये नहीं कि मसाइल कभी ना आए, बल्कि ये है कि हर मुश्किल से कुछ सीख लें, हौसला रखें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें. जी, बहुत शुक्रिया. आज की गुफ्तगू से हमें यही सीखने को मिला है कि कामयाबी सिर्फ़ ज़हानत से नहीं, बल्कि बिल्कुल. खुद नज़्म ज़ब्त, सेल्फ डिसिप्लिन, फ़ोकस होने से, मुस्तकिल हम्म. मिजाजी से और भरपूर तवज्जो से हासिल होती है. तो अगर हम बिल्कुल रोज़ाना बुचा. छोटी-छोटी मस्बत आदतें अपनाएँ, वक़्त के साथ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं. तो आपका बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी. अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. बहुत शुक्रिया. खुश रहिए और यही छोटे छोटे कदम आपकी कामयाबी का रास्ता बनेंगे.